हाय गाइस, आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ पुणे के आईटी पार्क में हमारा ऑफिस ओपन हो गया है एंड आज मैं जा रही हूँ फर्स्ट टाइम एक बड़े से इवेंट के लिए। उसके बाद हमारा डिनर का प्लान है, तो आपको इस वीडियो में फुल कॉर्पोरेट वाइब मिलेगा। तो मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। एंड विदु भी मेरे साथ जा रहा है मुझे ड्रॉप करने के लिए, तो वो भी बहुत एक्साइटेड है मम्मा के ऑफिस जाने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बिकॉज़ आपको यहाँ पे मिलता है डेली व्लॉग, लाइफस्टाइल व्लॉग एंड ट्रैवल व्लॉग कंटेंट। तो गाइस अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हमारा 6 बजे से वो इवेंट स्टार्ट है। तो मैं 5 o'clock ऑफिस में पहुँच गई थी और मुझे कल रात में अच्छे से नींद नहीं आई थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरा न्यू ऑफिस ओपन हो रहा है, मुझे न्यू ऑफिस में जाना है बिकॉज़ अब आपको लगेगा कि ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लाइक ऑफिस ओपन हो रहा है तो इसमें एक्साइटमेंट कैसा है। बट मेरे लिए वो था क्योंकि मैं बहुत दिनों से, मतलब कई सालों से मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। मोर देन 5 ईयर से मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, तो वो मेरे लिए बहुत मोनोटोनस हो गया था। तो फॉर अ चेंज मुझे था कि मेरा कब ऑफिस ओपन होएगा, कब मैं ऑफिस जाऊंगी। तो फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम अपने ऑफिस गई। तो गाइस 6 बजने वाला है और स्पेक्ट्रम इवेंट स्टार्ट हो रहा है, तो मैं भी नीचे जा रही हूँ। Spectrum is our effort, our platform to bring the latest and the greatest of the organization and share with you all to make sure you all also have, while you're working in your respective zones and in your respective areas, you also get the latest and greatest visibility of what's going on in the organization. I am, for people who still don't know me, I am Vishal Srivastava. I have the honor of leading this organization as your chief executive and truly humbled of what we have done over the last 6 months to integrate two amazing organizations into one. So kudos to all of you, kudos to the entire organization as we have come together to this momentous time and to this monumental time of this organization as one OGS. I've been here for over 13 years now. I started my journey with Omnicom from Gurgaon. We were a couple of members, came with lot of energy, with lot of enthusiasm. But even then, with all the energy that we carry, we never imagined how large and how strong critical role model and such critical leader. As a global organization, it's imperative and critical that you have the strong leadership, support, and visionary coming in from the global teams so that you can navigate the path much more easily. With that, it takes this conversation and this kind of success in our business. So thank you to the OGS teams for that. So with that, I'm just going to hand it over to the rest of the team and look forward to the rest of the presentation. Thank you. In a spree of a time, and that's exactly where we are today, talking up to all of us as one integrated organization. So Steve, thank you so much. With that, let's dive into our next section of OGS story to get you closer to who we are and how we win together. Right? It's important to first understand what we are, what our core vision and mission is, what's our purpose, what are we looking at as our North Star, and the direction that we are heading to. With that, I'm really proud to kind of bring you closer to the vision that we have set for ourselves, and how does that seals our positioning in the Omnicom ecosystem to deliver the most highly impact work for the clients and agencies across the world. Our vision is to be the global benchmark, for talent and capability excellence, leading transformation and scale. And in that, what our true ambition is to really be focused on being the global benchmark. Today we cater to almost 70 plus countries across the globe. The talent that is working for these markets, for these regions, are always compared with talents across 70 countries. We need to be at the top when it comes to what we present ourselves, how we present ourselves, and the work we deliver. And hence, positioning and keeping a close ambition of being the global benchmark is where our focus is, especially around talent, which is all of you and our people across all the cities in India, and also the capabilities that we bring on the table. That is what all our agencies and their clients leverage day in and day out to deliver the most impactful work across the board. So our ambition and our focus is around that. Be the global benchmark around talent and capability excellence, and that's what we are striving, and that's what our vision is. And how do we get there? Through a very focused mission. We just don't want to be the last leg of the conversation, right? We want to be the first leg of the conversation. Our mission is to be mission critical to every partner agency. We all deal with thousands of agencies across all the work streams that we and all the crafts and capabilities that we work in day out.
We have to be the mission critical to every partner agency by delivering integrated solutions. Extremely important to not act or operate as silos. You would be amazed to see how the same client, the same brand is being serviced by different capabilities or crafts in the organization. We don't want that to remain siloed. We want that to be integrated to bring the true value to an end customer or a brand of Omnicom that we are servicing from India, powered by data, technology and AI, which is, and thankfully and strongly with the post-acquisition of IPG, Omnicom has emerged so stronger in that space. While it was delivering great work in the focus kind of heavily in the world of data, technology and AI, with IPG's acquisition, it has emerged stronger. So powered by data, technology and AI, that unlocks, and this is very critical, that unlocks true competitive advantage to win and retain clients. Our work needs to be positioned there. If our work that we deliver is not helping our agencies to win new clients or to retain their existing clients, we will always remain as the last leg or the cost-saving books in the world of Omnicom. We don't want that. We want to be the differentiator. We want to be the unique selling proposition. We want to be the true competitive advantage that helps our agencies win. And OGS. I mean, I feel restricted. the vibrancy is just unbeatable. Kishan? Good evening, all. I think for me, it's looking like literally a dream coming true. The dream which Kiran Vishal started seeing, and of course, we joined in, and the entire team over here joined in. So collectively, we are like 7,000 people. We've been through several milestones, but this is very, very special. So very glad to be here with you. Yeah, no, I'm glad you brought that up. We've been talking about setting up something in Pune for years now. It had to be this. It had to be this big and this critical and this milestone for us to be here. So it's amazing. All right, why don't you kick it off with you, Kiran? We've been working for the last 8 months now in kind of seeing how we can bring such large organizations together. Integration is so critical. Yeah. Done right can turn into wonders. Done wrong can turn into disasters. So the question to you is, how are we ensuring we're not just bringing teams together, but truly building one integrated ways of working in terms of strengthening our delivery models, the governance around it, the accountability across the organization. 10 cities, so many crafts, so many capabilities being built. So how are we doing that? Well, it's pretty much rooted in our mission and vision, right? Like we've always kept our intentions closer to what our agencies need, what our teams need, because we are very conscious of the fact that while us as well as the rest of the leadership group, as we got together in Confluence, about a few months ago, the major decision that we took was, how do we first bring the orgs together, but we don't stop there. The idea was to bring the capabilities together, right? A lot of the time and the effort that your leaders have spent over the last 2 months has been to really chalk out what are the, what makes us unique, also what are the connection points that can really bring both of these massive organizations together. Because OGS is, and how is one OGS we are going to just power forward and conquer the world, right? But we must continue with the conversations. There are a few things which have been in existence. There are a few things which are going to come into existence very soon. I'm not going to spend too much time on that, but we've got, for those who haven't already gone and seen our LinkedIn page as Omnicom Global Solutions, please go. Vishal is available for selfies. People see you, OGS India is available. तो फ्रेंड्स, स्पेक्ट्रम ख़त्म हो चुका है. अब मैं जा रही हूँ थोड़ा फ़ोटोज़ एंड सेल्फीज़ निकालने के लिए. उसके बाद हम डिनर के लिए जाएंगे, और डिनर हमारी कंपनी ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है. तो अभी मैं आपको पूरा कैंपस दिखाऊंगी कि कितना अच्छा दिख रहा है. अभी रात हो चुकी है, लाइक बिकॉज 6 to 7:30 तक स्पेक्ट्रम था. ये 7:30 ख़त्म होने के बाद हम थोड़ा बाहर आए वापस, और आपको दिखाऊंगी पूरा कैंपस. बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है. ये जो कैंपस है ITPP खराड़ी टेक पार्क है, और काफ़ी बड़ा टेक पार्क है. मतलब मैं इसके पहले तो कभी यहाँ इस टेक पार्क में आई नहीं थी, बट मुझे लगता नहीं था कि इतना बड़ा है. बट अंदर आके पता चला बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज़ हैं यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा कॉर्पोरेट वाइब दिख रहा है. तो गाइस, इस स्पेक्ट्रम को अटेंड करने के लिए हमारे ऑफिस के डिफरेंट लोकेशन से काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं. टुडे इज़ मोर देन 1000 पीपल,
और कुछ बहुत सारे लोग हैं जो पुणे ऑफिस लोकेशन से नहीं आ पाए हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन है एंड सम अदर रीज़न ऑल्सो। आप देख सकते हैं कैंपस कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लांटेशन किया हुआ है, हर तरह के आपको शो प्लांट दिखेंगे। उन्होंने बैठने के लिए भी बहुत सारे अच्छे अरेंजमेंट किए हुए हैं। अगर आप ऑफिस करने के बाद थोड़ा सा चिल करने के लिए अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ बैठना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ऑफिस में बैठ सकते हैं, वो कैंपस में, वो गार्डन एरिया में। एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाइब आ रहा था और शाम का टाइम है तो बहुत अच्छी हवा चल रही है और वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फाउंटेन भी, कितना छोटा सा फाउंटेन है बट बहुत प्यारा दिख रहा है। तो डेफिनेटली अगर मैं इस आईटी पार्क में नहीं आई होती तो मुझे पता ही नहीं चलता अंदर से इतना ज़्यादा बड़ा है, बिकॉज़ हम बाहर से जब भी गुजरते हैं तो वो देखने में उतना भी बड़ा नहीं लगता है, थोड़ा छोटा ही लगता है, लेकिन अंदर जाके पता चला इसका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। एंड अभी जिस फ्लोर पे हम हैं वो एस फ्लोर है और इसके 2-3 लेवल नीचे तक पार्किंग है। एंड एस फ्लोर जो है वो सबसे लाइक ग्राउंड फ्लोर आप समझ सकते हैं। यहाँ से हम लिफ्ट लेते हैं बाकी सारे फ्लोर्स के लिए, और सारे ऑफिस की जो एंट्री है, जो मेन एंट्रेंस है, अलग अलग डिफरेंट ऑफ कंपनीज़ के, सबके इसी से स्टार्ट होता है। एंड इस लेवल पे आपको काफ़ी सारे कैफेटेरिया भी है, डिफरेंट कैफेटेरियाज़ हैं। तो गाइज़ आज का हमारा जो ड्रेस कोड था वो स्मार्ट फॉर्मल था, जो कि हमें पहन के आना था इस इवेंट के लिए। एंड गाइज़ अभी हम जा रहे हैं कैफेटेरिया में। तो मैं अभी फ़र्स्ट टाइम हूँ तो मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ कि कहाँ है कैफेटेरिया। यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं तो उनसे पूछने पे वो गाइड कर दे रहे हैं, अच्छा ये जगह यहाँ पे है। तो सब बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं जो सिक्योरिटी गार्ड वाले जो भैया लोग हैं। तो अभी हम आए हैं एक कैफेटेरिया में, बट ये काफ़ी खाली लग रहा है। यहाँ पे तो लोग गेम खेल रहे हैं, स्नूकर खेल रहे हैं। यहाँ पे भी काफ़ी खाली है। ये हमारा 7-Eleven है। ये 7-Eleven देख के मुझे थाईलैंड ट्रिप की मेरी याद आ गई, बिकॉज़ जो लोग अगर थाईलैंड गए होंगे तो वो में भी मेरे बातों को रिलेट कर पाएँ कि मैं 7-Eleven क्यों बोल रही हूँ। ये एस फ्लोर है एंड एस फ्लोर पे काफ़ी सारे कैफेटेरियाज़ हैं, बट आई बिलीव इसमें तो नहीं हो रहा है हमारा डिनर ऑर्गेनाइज। एंड ये एक लॉबी में बालकनी है जहाँ पे हमें बाहर की बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, अलग बाहर की सोसाइटीज़ के जो बिल्डिंग्स है वो दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है रात का टाइम में। तो अभी हम वापस से जा रहे हैं दूसरा वाला कैफेटेरिया को ढूंढने के लिए जहाँ पे हमारा डिनर ऑर्गेनाइज है। तो गाइस हमसे पहले ही हमें मेल पे आ गया था एंड फॉर्म हमें फिलअप करना था कि लाइक हम वेज मील के लिए ऑप्ट कर रहे हैं या नॉन वेज मील के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। तो हमने वो पहले वहाँ पे सबमिट कर दिया था फॉर्म फिल करके। तो मैं अभी सिक्योरिटी वाले गार्ड से पूछते मैं फाइनली, मुझे लग रहा है मैं वो जगह पे पहुँच जाऊँगी उस वाले कैफेटेरिया में जहाँ पे हमारा डिनर प्लान है। कि हम सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो हमने कभी एक दूसरे का चेहरा देखा ही नहीं, बिकॉज हम कभी ऑफिस आए नहीं, तो हमें पता नहीं कि वो हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं या फिर किसी और कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं। तो लाइक वो हम सब के लिए ही न्यू था। और हम सबको जो आईडी कार्ड मिला था उस ऑफिस के लिए वो विजिटर कार्ड था, बिकॉज हमारा उस समय तक बन के नहीं आया था, तो सबके पास वो विजिटर कार्ड ही था, तो हमें पता ही नहीं चल रहा था। एंड मेरी टीम जो है वो मेरी टीम के कोई भी पर्सन जो है वो पुणे लोकेशन में नहीं है, सब अलग अलग बैंगलोर लोकेशन में, मुंबई, हैदराबाद, गुरुग्राम, सब अलग अलग लोकेशन पे हैं। तो मेरे टीम वाले कोई थे ही नहीं कि जिनको, बिकॉज मैं मेरे टीम वाले को बाई फेस जानती हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम मेरे टीम वाले को बाई फेस नहीं जानती हूँ, तो फिर मुझे पता नहीं चल रहा था कि लाइक ये हमारी कंपनी के हैं या फिर ये दूसरी कंपनी के हैं, लाइक दैट। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ जहाँ पे हमारा डिनर ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और यहाँ पे देख के लग रहा है बहुत ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी क्राउडेड लग रहा है। एंड पता नहीं मिल भी पाएगा या नहीं खाने को, या खाना ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज अभी हो रहे हैं 8:30 हो रहा है। एंड यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन है एंड वेज एंड नॉन वेज के लिए अभी सिंगल लाइन है, आगे जा करके वो 2 डिफरेंट लाइन हो जा रही है। गाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है और फाइनली अब हमारा नंबर आ गया, प्लेट ले रहे हैं। हमारा वेज एंड नॉन वेज का अलग अलग काउंटर था, तो मैंने नॉन वेज ऑप्ट किया था। तो गाइज़ नॉन वेज मेनू में चिकन बिरयानी, चिकन कड़ी, चपाती, सैलड, चिकन चिली था, एंड इसके अलावा स्वीडिश में गुलाब जामुन एंड बटर स्कॉच आइसक्रीम। एंड वेज मेनू में वेज बिरयानी था, पनीर की सब्जी थी, चपाती, सैलड,
पापड़ एंड कुछ ड्राई वाली सब्जी भी थी, और उनका कुछ स्टार्टर में कुछ कबाब था, हरा भरा कबाब जैसा कुछ था। और गाइस हमारा मॉकटेल जो था उसमें ब्लू लगून था, एंड दूसरा वाला एक और मॉकटेल था उसमें वो ग्रीन एप्पल मिंट फ्लेवर में था। तो गाइस मॉकटेल वाले काउंटर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी एक्चुअली, यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा था हमें लेने में। तो फाइनली मुझे ब्लू लगून मिल गया था। अच्छा हुआ कि मैंने पहले खाना खा लिया एंड स्वीडिश भी खा लिया, बिकॉज़ अगर हम पहले मॉकटेल लेते तो खाना ख़त्म हो चुका होता। तो ब्लू लगून ट्राई करने के बाद मैंने ग्रीन एप्पल मिंट फ्लेवर ट्राई किया। मैंने सब चीज़ ट्राई कर लिया, मैंने खाना खा लिया, मैंने स्वीडिश खा लिया, मैंने ब्लू लगून ट्राई कर लिया, मैंने ग्रीन एप्पल ट्राई कर लिया। सब चीज़ खाना पीना खाने के बाद में पेट पूरा भर चुका था, और मैं जा रही थी पार्किंग में जहाँ से हमारे लिए कैब अरेंज था। तो वहाँ पे हमने एड्रेस पहले ही ऑफिस में सबमिट कर दिया था। मैं जा रही हूँ -2 पार्किंग में, और वहाँ से हमें कैब मिलेगा। तो गाइज़ अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फॉर सच अमेजिंग डेली व्लॉग एंड ट्रैवल व्लॉग के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। बाय बाय, टेक केयर।